Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics, that is macroeconomics and the Indian economic development, and you have also faced some various examination in your school like RT1, pre-board 1, RT2, pre-board 2, as well as the RT3 is going on. So as of the many of the classes have been faced by the student and the I am seeing that the many of the student have facing the some problems, so that from the previous classes we were continuously revise the chapters, basically the numerical questions. We have done numbers of the numerical questions in your related to your income determination and the multiplier, as well as national income and the related aggregates, measurement of national income. Okay, so along with that we have also discussing some theoretical part of your macroeconomics, like basically the foreign exchange rate, aggregate demand, aggregate supply, excess demand, excess supply, income determination, balance of payment, government budget, and so on. Okay, so after that we have started to solve the papers. First of all, we have discussed the CBSE sample paper, which is issued by the CBSE in the 2020. We have already discussed whole paper, and after that we have started that is CBSE examination paper 2020, the paper which came in the 2020 subject economics. Okay, so we have discussed a number of the questions. I think around 30 to 31 we have already discussed. So what we have discussed, first of all let us recapitulate. So firstly we discussed with the 1 mark question. You know very well 34 questions are coming there. 17 are from macroeconomics and 17 are from Indian economic development. Okay, so first we have discussed to reduce the credit availability in the economy, the central bank may what they do. Next question, discuss deficit includes interest payment by the government on the past loan. Third question is inventory is a stock variable. Yes, inventory is a stock variable. Question number 4 is the which of the following is a not a factor payment. So scholarship to the student is a not a basically the factor payment. Next one is in case of an underemployment equilibrium, which of the following alternative is not true? So resources are fully and efficiently utilized. This statement is not true when we talk about the underemployment equilibrium. Next we have discussed the all financial institutions are the banking institution. No, this one is false. Next question, the answer is mixed income. We have already discussed. If the question number next one is 8, if the MPS is given, change in investment is given, so you have to calculate the change in income. We have already done. So K equal to 1 upon MPS, so that we get the value of K, and after that K equal to delta Y upon delta I, so we put the value of multiplier and the change in investment, so we get the value of change in income. Question number 9 we have already discussed, define the term public goods. Question number 10 is net domestic fixed capital formation plus change in stock is equal to net domestic capital formation. One question is given in the OR. When the nominal GDP is given, price index is given, so you have to calculate the real GDP. So price index is equal to nominal GDP upon real GDP into 100. Okay. Next question is subsidies to the producer should be treated as transfer payment. Defend or refute. So we already refute this statement with the valid reason. One question is given in the OR in question number 11, that is explain the circular flow of income in the two sector economy. So in the two sector, household and firm sectors are given. So you have to make a diagram and explain it all the different steps. Next question is question number 12. It is the numerical question which is related to the calculate the GVA HMP, gross value added at market price. Next question is taxation is an effective tool to reduce the inequalities of the income. So yes, it is the effective tool to reduce the inequalities of the income. Next question is the one diagram is given here. So you have to express or you have to identify that difference, the differences
known is given the name as the KT. Okay, you have to identify. Next question is role of the reverse repo rate in the case of the problem of excess demand. So this question is given in the 14 where the diagram is given. So excess demand should be increased. Next question is question number 15, the functions of the central bank as a banker, agent and the advisor to the government. Next question, question number 16, it is of 6 marks, that is differentiate between demand for the domestic goods and services and domestic demand for the goods and services. One question is given in the that question. A16 is divided into 2 parts, that is A and B. So B is the differentiate between current account deficit and the current account surplus. Question number 17 is given as the numerical question. We have already solved, and one question is given in the OR, that if the aggregate demand is more than the aggregate supply and if X and investment is less than the X and saving. So we have already discussed. Then we move to the section B, that is Indian economic development. So in this we have discussed the question number 18, that is policy of the import substitution. So it is basically for to protect the which industries? So domestic industries. Okay. Next question is maternal mortality rate is high in whether in China or the Pakistan. So Pakistan. Next question is give the meaning of the marketed surplus, meaning of subsidy. We have already discussed. State whether the following statement is true or false. So as per the HDI 2018, India was ranked in the 180th position. So this statement is false. Next question is if the construction site manager hire 2 workers on the daily wages basis, such a situation is covered under the formal or informal. So informal. Next question, which of the following countries initiated in the process of economic reform in the year 1991? So this one is India. So next one is greater population of the women workers are found in urban/rural areas as a component of Indian workforce. So rural. Next question is GATT was established in 1923 with the 48 member. So this statement is wrong. So GATT was established in the 1948 with the 23 members. Next one is full form is question number 27 is full form of GLF. So this one is Great Leap Forward. Question number 28 is explain the concept of the informalization of the workforce. So when the workforce is shifting from the formal sector to informal sector. So 3 challenges facing the rural development we have discussed. Question number 29 is related to compare and analysis. So one table is given, comparison between the India and China we have already discussed. So question number 30. Yes. 30 is that discuss briefly any 2 major steps taken by the government of India on the financial sector. So this one is open new private banks are opened. Second one is RBI, the role of RBI is converted from the regulator to facilitator. Okay, so question number 31, which we discussed, that in the question number 31 the options are given. Option is given. So discuss briefly any 2 salient feature of the India's pre-independence occupational structure. We have discussed, that is predominance of the agriculture and the regional variation. We have discussed till here. So in today's class we are going to start with the question number 31, the OR question. Okay, so let's get started. Okay, so let's start with the question number 31. The question is given in the OR. So 31 is of 4 marks. Okay, so we will discuss with the 31 OR question. So the question is given here, discuss briefly the rationale behind equity with growth. Equity with growth as planning objective for the Indian economy. So equity
कॉन्सेप्ट है, यही आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं इक्विटी भी हो और ग्रोथ भी हो, तो इक्विटी किस बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द इनइक्वालिटीज ऑफ द इनकम एंड द वेल्थ, डिफरेंट सेक्टर्स, सो इनइक्वालिटीज of income, wealth and different sectors of the economy, different sectors of an economy, right? So देखिए इसमें कह रहा है कि both growth and equity are two important objective of the Indian plan, okay? कि ग्रोथ और इक्विटी दोनों ही एक मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया के प्लानिंग का शुरू से ही। सो वाइल ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन द नेशनल इनकम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इक्विटी रेफर्स टू द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस इनकम सो दैट बेनिफिट ऑफ द हायर इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी पास टू ऑल द सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन टू ब्रिंग अबाउट द सोशल जस्टिस। जब हम लोग बात करते हैं इक्विटी विथ ग्रोथ की, so there should be equalities of the income, wealth and the different sector, but problem यहाँ पे क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है आपकी inequalities of the income, wealth and the different, जो भी देखिए जब हम लोग बात करते हैं ग्रोथ मतलब हम लोग किसको लेते हैं, जीडीपी को लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी कहता है कि क्या होना चाहिए, पूरे ओवरऑल इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को ग्रोथ में ले रहे हैं तो प्राइमरी को स्किप करते, नहीं। जब हम ग्रोथ की बात करें तो उसमें प्राइमरी सेक्टर भी होना चाहिए, सेकेंडरी सेक्टर भी होना चाहिए और टर्शरी सेक्टर, मतलब इंक्रीज इन दी नेशनल इनकम। कंट्री की नेशनल इनकम क्या हो रही है, वो इंक्रीज करिए, और कंट्री की नेशनल इनकम तब इंक्रीज प्रॉपरली करेगी, इंक्रीज तो कर रही है बट इक्विटी नहीं हो रहा है प्रॉपरली, और इक्विटी के साथ ग्रोथ तब होगा when there should be a equalities of the income। जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग इक्वालिटीज की बात करेंगे। इनकम की इक्वालिटीज कहाँ से, जो भी डिफरेंट सेक्टर्स है इकोनॉमी में, ठीक है। अगर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में क्या करते हैं कि वो पूरे इक्वालिटीज इनकम की डिफरेंट सेक्टर में हर ओर से जो भी इनकम का जनरेशन हो रहा है वो इक्वल हो। ऐसा नहीं कि सर्विस सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करे, सेकेंडरी सेक्टर उससे कम करे और प्राइमरी सेक्टर का नेग्लिजिबल है या बहुत रेयरेस्ट है, तो वहाँ पे हम ग्रोथ तो बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि ग्रोथ नहीं हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है बट वहाँ पे इक्विटी नहीं हो रही, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जा रही है, इनइक्वालिटीज ऑफ द इनकम, ठीक है। तो यही कह रहा है, सो ग्रोथ इज डिजायरेबल बट ग्रोथ इज इटसेल्फ डन नॉट गारंटी द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सिंपल है कि ग्रोथ डिजायरेबल है बट ग्रोथ हो, ग्रोथ के साथ वेलफेयर हो, ये श्योर नहीं है। देखिए जब हम लोग बात करते हैं वेलफेयर होगा तो ग्रोथ हो सकता है, बट ग्रोथ हो तो वेलफेयर हो ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग कंट्री में जैसे बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, सिगरेट्स हैं, इनका भी प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, और हमें पता है कि ये अच्छे नहीं है। यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है कंट्री का क्योंकि वहाँ से टैक्सेशन मिल रहा है, इनकम जनरेशन हो रहा है, बट दिस इज़ नॉट गुड फॉर दी वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए सही नहीं है। इसके लिए क्या है कि ग्रोथ की तो बात हम कर सकते हैं बट वेलफेयर वहाँ हो वो ज़रूरी नहीं है। सो ग्रोथ इज असेस्ड बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी एंड इट डज नॉट गारंटी अ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, ग्रोथ तो हम ये देख रहे हैं कि जो भी मार्केट वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है, अब ग्रोथ के साथ ये गारंटी नहीं है कि वेलफेयर भी हो, वेलफेयर मतलब इक्विटी भी हो, इक्वालिटीज ऑफ इनकम भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। So in other words, the major share of the GDP might be owned by the small proportion of the population, which may result the exploitation of the weaker section of society. Basically हो क्या रहा है, जो भी इनकम जनरेशन हो रहा है, जैसे मैं आप लोगों को क्लास में भी बताती हूँ, जैसे पर कैपिटा इनकम हम लोग निकालते हैं, ठीक है, हम लोग कंट्री की पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय दी टोटल पॉपुलेशन। तो नेशनल इनकम पॉपुलेशन तो हमारी बहुत ज़्यादा है और नेशनल इनकम का जो जनरेशन हो रहा है, तो जो भी वीकर है, वीकर की हम लोग क्या इनकम को उसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि नेशनल इनकम कंट्री की जो रिचर है, रिच पीपल है, उनकी इंक्लूड हो जा रही है और हम लोग पर कैपिटा निकाल देते हैं, हाँ इतनी इनकम हो रही है,
तो ओवरऑल हम ये देख लेते हैं कि हाँ कंट्री तो बेटर कंडीशन पे, बट वो कंट्री की बेटर कंडीशन नहीं हो सकती है। क्यों? कि जो भी हम नेशनल इनकम क्या करें कैलकुलेट कर रहे हैं वो किससे हो रहा है, वो जो कोई भी सेक्शन में सोसाइटी में रिचर सेक्शन है, रिच सेक्शन है, और वीकर सेक्शन वो उनका कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है, एक्सप्लॉइटेशन होता जा रहा है। तो ग्रोथ तो वहाँ होगा, ऐसा नहीं कि हम लोग ग्रोथ नहीं होगा, बट वहाँ पे इक्विटी नहीं होगी, वहाँ पे इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ कंटिन्यू ही रहेगा। ओके, सो हेंस ग्रोथ विथ इक्विटी इज अ रैशनल एंड डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। कि एक बहुत आइडल और एक बेसिकली हम कह सकते हैं डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए प्लानिंग का। सो दिस ऑब्जेक्टिव इंश्योर्स दैट द बेनिफिट ऑफ द हाई ग्रोथ आर shared by all the people equally, and hence inequality of the income is reduced along with the growth in the income. Okay, तो अगर properly income का generation होगा और income हर section society के हर section में equally distribute होगी, तो ये जो problem है inequalities of the income and wealth among the different sectors of the economy should be declined. Okay, तो इसमें आपको इस क्वेश्चन नंबर 31 में यही आंसर पूरा लिखना है। तो ये कितने को नंबर का था, 4 मार्क का था। आपके पास ऑप्शन था, या तो आप ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में लिखो, और या तो आप इक्विटी विथ ग्रोथ को एक्सप्लेन करो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पावर सेक्टर। तो आपको पता है कि कोविड में आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो आपको पावर सेक्टर नहीं पढ़ना है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 एंड 34 इट इज ऑफ 6 मार्क्स। ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। एंड 34 6 मार्क्स ईच। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 33 इज इन 2 part, that is part A and part B. Part A is saying that explain how does investment in human capital formation to growth of an economy. Investment in human capital. Investment in human capital. ये एक्सप्लेन करना है। सेकेंड है आपको स्टेट मीनिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, दोनों ही सिंपल कंसेप्ट है, कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज बिलीव इन दी पॉजिटिवली रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। एकदम, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या होता है, it should be increase in the efficiency और the skills of any individual। और किसी की skills और efficiency कैसे increase होती है, जब proper उसके पास education हो, proper health facility हो, proper अगर infrastructure facility उसको provide की जाएगी, तो किसी की भी human capital increase होता है। अगर ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होगा तो उसका फिजिकल कैपिटल भी इंक्रीज होगा, क्योंकि तब वो ज़्यादा प्रॉपरली प्रोडक्शन कर पाएगा गुड्स एंड सर्विसेज का। तो स्किल्स और द डिफरेंट एफिशिएंसी विच वी नीडेड टू प्रोड्यूस द कमोडिटी मच मोर इन द बेटर पोजीशन, इसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन कैपिटल, की किसी भी इंडिविजुअल की एफिशिएंसी और स्किल को इंक्रीज करता है। तो अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट किस में करें, ह्यूमन कैपिटल, तो ये क्या किसी भी इकोनॉमी के लिए या इंडिविजुअल के लिए प्रॉफिटेबल कंडीशन है? तो यस, ये प्रॉफिटेबल कंडीशन है। इसमें कह रहा है इट शुड बी इंक्रीज इन द लेबर प्रोडक्टिविटी। ये क्या करेगा, ये लेबर की प्रोडक्टिविटी, लेबर जो पहले प्रोड्यूस कर रहा था, प्रोडक्शन कर रहा था कमोडिटी की, उसकी प्रोडक्टिविटी को वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा, ठीक है। उसकी प्रोडक्टिविटी, अब मेरे पास अगर ज़्यादा एफिशिएंसी होगी तो मैं जो भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करेंगे वो ज़्यादा क्या आएगी, ज़्यादा एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिव मैनर में प्रोड्यूस करूँगी। सेकंड क्या हो सकता है कि ये इनोवेशन करता है, इन्वेंशन करता है। किसी के पास ज़्यादा ह्यूमन अच्छी एजुकेशन है, प्रॉपर हेल्दी है, वेल्दी है, तो वो क्या करेगा, वो इनोवेशन भी कर सकता है, क्रिएटिंग न्यू आइडियाज़, वो न्यू आइडिया को भी
क्रिएट कर सकता है, और ईजिली वो किसी भी सिचुएशन में अडेप्टेशन भी उसकी हो जाती है, ठीक है। अगर उसको उसी किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहा है काम करने और उसको वहाँ पे कोई भी समझ में नहीं आ रहा है कि डिफरेंट मशीन्स को या कैसे उसको क्या करना है, कैसे ऑपरेट करना है, बट अगर उसके पास प्रॉपर उससे रिलेटेड एजुकेशन होगी, उसका हेल्थ भी अच्छा होगा, तो वो उस सिचुएशन में ईजिली क्या हो जाएगा, अडाप्ट हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट मीन्स कि अगर हम लोग प्रॉपरली एजुकेशन में इन्वेस्ट करें तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट हमें बेटर ही मिलेगा। इसमें आपको यही लिखना है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। सेकेंड है आपका एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का सिंपल सा मीनिंग होता है कि गुड्स का क्या करना, सिंपली अगर हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग करना, पैकेजिंग करना, स्टोरेज, असेंबलिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल दी डिफरेंट गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड, जो भी प्रोड्यूस्ड हुए हैं उनको सिंपली मार्केट तक पहुंचाना। एग्रीकल्चर जो भी गुड्स हैं उनकी मार्केटिंग करना। अब मार्केटिंग करने के लिए वैसा तो है नहीं कि हमें अगर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है तो हम बस जो भी प्रोड्यूस करेंगे उनको बस ऐसे ही जाके रख देंगे। उनका क्या करेंगे, उसको ग्रेडिंग भी करना होता है, प्रोसेस स्टोरेज की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो गया है, हमारे पास कोई भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है या स्टोरेज नहीं है, वेयर हाउस नहीं है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, सारे पेरिशेबल गुड्स हैं। तो उनका क्या है कि प्रॉपर वेयर हाउसिंग की भी फैसिलिटी होनी चाहिए, उसकी पैकेजिंग भी अच्छे से हो, ग्रेडिंग भी हो, असेंबल करे, ये सारा जो प्रोसेस करते हैं डिफरेंट जो भी कमोडिटीज़ का जो भी प्रोड्यूस हुए हैं उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। देखिए इसमें कह रहा है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व्स असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, grading and distribution of different agricultural commodities across the country। ठीक है, कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट कमोडिटीज का अक्रॉस द कंट्री हम जो कर रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो इसमें क्या क्या हो गया आपका, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, स्टोरेज और grading and next one is storage, processing, assembling, transportation, yes, transportation, packaging and distribution of different commodities across the country, ओके। और अगर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो इससे क्या होगा, इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, practice to adapt and innovation। अब 3 मार्क्स, अगर ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स ईच हो जाएगा, तो आपको यू हैव टू राइट दी 3 पॉइंट्स ना, आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा, इनोवेशन। ओके, तो क्या हो गया, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मतलब हो गया आपका प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, स्टोरेज, ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट कमोडिटीज़, जो भी कमोडिटीज़ प्रोड्यूस हुए हैं उनका पूरे कंट्री में क्या करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 एंड दिस वन इज लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सो 34 में और भी दिया हुआ है, ठीक है, तो और भी देख लीजिएगा, देख क्या लिखे मैं बताऊंगी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 34, क्रिटिकली एग्जामिन द रिजल्ट ऑफ द पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, आपको रिजल्ट किसका बताना है, 34 यस। सो रिजल्ट ऑफ
पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। एलिविएशन प्रोग्राम आपको याद होगा, जो हम लोग डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स पढ़े थे विच इज इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो भी मनरेगा था, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री, तो ये सारे जो भी प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड हुए थे बाय द गवर्नमेंट, उनका रिजल्ट बताना है कि उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट क्या हुआ था कंट्री पे। तो कह रहा है ड्यू टू while assessing these programs, scholars stated that 4 major areas of the concern which prevent their successful implementation. So due to unequal distribution of land and other assets, the benefits from the direct poverty alleviation program have been appropriated by the non-poor. ठीक है, हमें पता है कि जो भी unequal distribution किसका है, इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया unequal distribution of land। जहाँ पे unequal distribution है लैंड का, उस जगह पे डिफरेंट जो भी पुअर्स हैं उनको क्या हुआ, डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू उनको जॉब मिली, एम्प्लॉयमेंट मिला, तो उनके लिए वहाँ पे वो सिचुएशन अच्छी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एलोकेट फॉर दिस प्रोग्राम इज नॉट सफिशिएंट। ओके, जो जितनी पॉवर्टी है, ठीक है, इसके क्वांटिटी पॉवर्टी की, उसके कंपैरिजन में हम बात करें तो जो भी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुए वो इतने सफिशिएंट नहीं थे, क्योंकि सबको इसका एडवांटेज नहीं मिला। थर्ड है मोर ओवर दीज प्रोग्राम डिपेंड मेनली ऑन द गवर्नमेंट एंड द बैंक ऑफिशियल फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये पूरा प्रोग्राम किसके था, क्योंकि अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है तो उसको इनकम चाहिए, इनकम के लिए उसको बैंक के पास जाना था और गवर्नमेंट के ही थ्रू रन हो रहा था। सो सिंस सच ऑफिशियल्स आर दी इल मोटिवेटेड, वो सारे जो ऑफिसर्स थे वो क्या थे, इल मोटिवेटेड थे, इनएडिक्वेटली ट्रेंड थे, उतने ट्रेंड भी नहीं थे, करप्शन भी था वहाँ पे। सो दीज ऑल आर ऑल्सो सम कॉजेज बिकम दी फेलियर ऑफ द पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, जो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूशन उसका नहीं हो पाया। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैव ऑल्सो फेल्ड टू एड्रेस द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द वल्नरेबल पीपल हु आर लिविंग ऑन और जस्ट अबव दी। तो बेसिकली गवर्नमेंट भी क्या थी, वो भी इतनी अच्छी सिचुएशन में नहीं थी कि वो अच्छे से वो एक्सप्लेन कर सके कि व्हाट द करेक्ट सिचुएशन और कैसे इन सारे जो भी पॉलिसीज हैं इनको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करें। तो आपको यही सारे पॉइंट्स इसमें लिखने हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन और भी दे रहा है, ठीक है, 34 का और है, पार्ट ए और बी में है। ए पार्ट है, कह रहा है उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना हैज़ बीन अ गेम चेंजर फॉर द रूरल इंडिया, रूरल इंडिया के लिए गेम चेंजर था। स्टेट एनी 3 कन्वेंशनल, देखिए कन्वेंशनल आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, कन्वेंशनल सारे फ्यूल्स जो हैं वो हट गए आपके सिलेबस से। नेक्स्ट कह रहा है यस, सो उज्ज्वला योजना हैज़ बीन गेम चेंजर फॉर द रूरल इंडिया, स्टेट एनी 3 कन्वेंशनल फ्यूल्स, तो वो चीज़ वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, नहीं पढ़ना है ना। फिर इसी में कह रहा है कि इकोनॉमिक्स बिलीव दैट इंडिया शुड स्पेंड एटलीस्ट 6% of the GDP on the education for achieving the desired result। ठीक है, अब अगर ये टॉपिक है, एक तो ये आपका HCF में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से जो एजुकेशन सेक्टर है वो आपका डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं, इकोनॉमिक्स बिलीव करते हैं इंडिया शुड स्पेंड एटलीस्ट 6% GDP में उनको एजुकेशन का करना चाहिए। सो इसमें कह रहा है that is in India, yes, the current basically education expenditure is inadequate, जो एजुकेशन एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वो इनएडिक्वेट है, ठीक है। इतनी ज़्यादा एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उस पर नहीं करती है। सो इन इंडिया अबाउट 30.3 करोड़ पीपल आर स्टिल इलिटरेट, इतने 30.3% क्या है, स्टिल पीपल क्या है, इलिटरेट है। द फीमेल लिटरेसी इज रेट इज 65.4 से, अभी तक जो फीमेल की लिटरेसी रेट है वो 65.46 है, विच इज़ क्वाइट लो एज कंपेरिजन टू मेल लिटरेसी। अगर हम लोग उसको मेल लिटरेसी के साथ कंपेयर करते हैं तो मेल लिटरेसी अराउंड 82% है और फीमेल की अभी भी 65% है। एंड देयर इज डिस्पैरिटी इन एजुकेशन लेवल ऑफ अर्बन एंड रूरल एरिया, ठीक है। अर्बन और रूरल एरियाज में भी क्या हो रहा है, डिस्क्रिपेंसीज फाइंड आउट हो रही है, मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉपरली एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है इन रूरल
areas. ठीक है, so these all are the some reason behind the कि ये जो बोला जा रहा है कि 6% GDP में एजुकेशन सेक्टर को भी क्या करना चाहिए, अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए. ठीक है, सो फ्रॉम दिस वी हैव completed the solution of the CBSE examination paper 2020. So till here we will start the next topic or the solve the new paper, examination paper, or the different questions of the whatever came in the already examination in 2017-18. So we will discuss in the next class. Okay, thank you.